Welcome back, guys. Welcome back to Stock Explorer once again. I am Pranav once again for you all. We'll be discussing another company for you today. But before that, a quick review of the market. Today it was Monday and the markets were in green. So, good news for all the people who were invested today in the market, who didn't short the market actually. And another good news that S&P today has touched the all-time high. So, in US, S&P 500 is reaching all-time high today itself. So, another great news for us. Tomorrow we should be expecting markets to open in green again. With the Reliance result, with the dull result actually, and HCL Tech with the amazing outperforming results. So few results came out, few more results are coming tomorrow. Angel One, I think, is coming out tomorrow as well. So excited for all that. But today we'll be discussing about BLS International Services. ये कंपनी करती क्या है and what are the strong competitive edge for this company and what is the prospect. We'll be discussing all about that. So BLS Services is a part of 4-decade-old BLS group. Basically, this is a technology company, data service provide करती है. So आपके लिए वीज़ास और जितने भी आपके पासपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज होती हैं, ये वो प्रोवाइड करती है. अगर आपको यूरोप या बाहर कहीं जाना होता है एंड the only place where you can go and get the visa for outside for Schengen visa is BLS पूरे इंडिया में and as well as बाहर भी. So this is a number 2 company in the world. सो अपार्ट फ्रॉम BLS और कोई कंपनी है नहीं इंडिया में. अपार्ट फ्रॉम BLS एक और कंपनी है VHS, बट उसका लेवल इज नोवेयर नेक्स्ट टू BLS. करती है वो, बट उस अदर कंट्रीज के लिए करती है. मेजोरिटी कंट्रीज के लिए जो है BLS करती है सर्विसेज प्रोवाइड. सो इट्स 2005 में स्टार्ट किया था उन्होंने वीज़ा प्रोसेसिंग, एज यू कैन सी हियर. एंड देन 2011 एंड 15 में इन्होंने बड़ी कंट्रीज को भी ऐड किया, यूएस एंड कनाडा अमंग देम. सो 2011-15 में इन्होंने बड़ी बड़ी कंट्रीज को भी प्रोसेसिंग फी की. एंड देन 2016 and 17 में द कंपनी गॉट लिस्टेड इन NSE and BSE. So this is the only company which is listed in BSE, guys, and NSE. So VHS is not listed. So this is the only listed player. After 2018 expanded operation in 11 more cities. So काफ़ी तेज़ी से expand कर रही है अभी ये company. And it also commenced operation for embassy of Vietnam and Lebanon in India. So India में इन्होंने embassy of Vietnam and Lebanon का भी काम किया. The group serves 20 Indian diplomatic missions in various geographies. So India में उसके अलावा बाहर भी 20 अदर डिप्लोमेटिक मिशन में काम करती है. सो काफ़ी डाइवर्सिफाइड काम है इसका और वेल कनेक्टेड काम है. It's a company with around 60,000 employees. I was reading through the presentation, and it said it has 60,000 employees in it. So big number of people are there working for it. So very nice, well diversified company as well. Recently, the company also started handling Kendra Seva services in UP from UP government. So UP government ने उनको 20,000 केंद्र सर्विसेज का काम दिया था जो ये संभाल रही हैं. अपार्ट फ्रॉम यूपी देयर वर अदर स्टेट्स एज वेल जिन्होंने अपने अपने ई सर्विसेज के प्लेटफॉर्म भी संभालने के लिए दिए हैं. तो ये काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं. कंपनीज ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ ई सर्विसेज इन इन गवर्नमेंट्स फॉर पंजाब, यूपी, राजस्थान, कर्नाटका, बंगाल एंड एस्टोनिया. तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं यहाँ पे भी. द कंपनी ऑल्सो हैंडल्स कनेक्टिविटी फॉर SBI जैसे बैंक के लिए भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है. द कंपनी हैज़ ओपन सेंटर्स अक्रॉस स्टेट्स टू फैसिलिटेट सिटीजन सर्विसेज एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन. ये भी प्रोवाइड करती है कंपनी. अब मेन एडवांटेज तो देखिए सबसे पहले ये कि एक्सपोजर. नाउ आई वुड से हर आदमी की एस्पिरेशन है बाहर जाने की, यूरोप जाने की, इंडिया से बाहर काम करने की, रहने की. एंड टू प्रोसेस ऑल दोस थिंग्स दीज आर द प्लेसेस वेयर यूल हैव टू गो. आपको यहाँ जाना ही पड़ेगा. यू हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस एंड देन ओनली यू कैन गो थ्रू इट. सो इनका जो रेवेन्यू सेगमेंट है आप देखेंगे 89% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम वीज़ा सोर्सिंग. तो जो इनका मेन धंधा है वो वीज़ा सोर्सिंग ही है. आप देख सकते हैं वीज़ा सोर्सिंग से ही इनको मेन पैसा आ रहा है. 90% के प्रति आसपास पैसा वहीं से आ रहा है. 9% फ्रॉम ई गवर्नेंस. जो आपके ये सेवा केंद्र बने इन्होंने बना रखे पूरे यूपी में और पंजाब में, वहाँ से 9% ही आ रहा है. एंड टू बिजनेस 14% इज फ्रॉम इंडिया. तो इंडिया का भी मीगर 14% से ही आ रहा है. बाहर मेजर जो पोर्शन आ रहा है वो 86% रेवेन्यू जो आ रहा है इंटरनेशनल बिजनेस से ही आ रहा है. तो इंडिया का भी जो मार्केट है अभी भी बहुत बाकी है ग्रो करने के लिए. इट्स जस्ट 14% राइट नाउ. Coming to acquisition, this company is almost an IT company. So acquisitions and
mergers इसमें काफ़ी सारे होते रहते हैं. So recently in 2024, this news is from 2023 about the acquisition of 88% in Zero Mass Private Limited. But अभी recent news आई है इनकी, in which the company has acquisition of Citizenship Invest. सिटीजनशिप इन्वेस्ट करके कंपनी है जो बेसिकली प्रोवाइड करती है यूएई में, और वहाँ पे प्रोवाइड करती है वीज़ा सर्विसेज हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए. सो बेसिकली अगर आपको यूएई या दुबई या फिर उस एरिया में आपको जाके सिटीजन बनना है तो आप अपना इन्वेस्टमेंट करके भी बन सकते हैं. तो उनके लिए जो सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनी सिटीजनशिप इन्वेस्ट, उसको एक्वायर किया है. एट व्हाट प्राइस? 260 करोड़, which is a massive deal, guys. Last year, the company made only 81 crores in profit, and they bought a new company. नई कंपनी खरीदी है 260 करोड़, ऑलमोस्ट 3 to 4 times more than the profit which they made. So काफी बड़ा इन्होंने एक्विजिशन किया है. But the sales of that company were around 94 crores. So 260 करोड़ की कंपनी खरीदी है, 90 से 95 करोड़ की सेल की है, आउट ऑफ विच 45% इज एबिटा, मतलब 40 करोड़ के आसपास तो प्रॉफिट दे रही है कंपनी. सो इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस जो उन्होंने भी खरीदा है, विच इज सिटीजनशिप इन्वेस्ट. सो ग्रेट एक्विजिशन विच दे हैव डन. So they are operating in 66 countries with a network of 30,000 application centers. So काफी बड़ा नेटवर्क है इनका. एंड इसकी जो कंपनी है BLS इंटरनेशनल, उसके अंदर दो और कंपनी है, बोथ ऑफ देम आर लिस्टेड, BLS ई सर्विसेज एंड BLS इंटरनेशनल company. So in which they take care of UK, US, UAE, Russia, Ecuador, Algeria, Canada, China, Malaysia, Singapore, Hong Kong, Saudi Arabia, Turkey, Morocco. So इन सबके लिए वीज़ा, काउंसलर एंड ई गवर्नेंस की सर्विसेज ही प्रोवाइड करती है, विच इज़ मैसिव, अमेजिंग काम कर रही है अभी ये. और बहुत ही क्लीन प्रोसेस है. अगर आप इनका आप कभी जाइए, सब ऑनलाइन बेस्ड काम है. ऑफिसेज बने हैं इनके मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में. धीरे धीरे ये टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़ में भी आ रहे हैं, लुकिंग एट द ग्रोथ ऑफ डिमांड एज वेल इन दी सर्विसेज फॉर वीज़ा. अभी मेजरली दुबई, दिल्ली में है, मुंबई में है, कैलकाटा में, बैंगलोर में है. So these are the major cities where you'll have to go and get your visas processed. So online आप लीजिए डेट, you go there, you show all the documents, you pay the fees first, each fee is somewhere around 4-5 thousand rupees, and then you get your things, submit your passport, and then you receive your वीज़ा बैक एट होम इन 2-3 days. बहुत ही क्लीन सा प्रोसेस है. वीज़ा प्रोसेसिंग का काम है, वैल्यू एडेड सर्विसेज एक काउंसलर हैं. डिजिटल सर्विसेज में ई गवर्नेंस मैंने आपको बताया, यूपी के लिए सेवा केंद्र जो भी हैंडल कर रहे हैं लोग. अपार्ट फ्रॉम दैट बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, SBI का ऑनलाइन पोर्टफोलियो प्लेटफॉर्म भी हैंडल करते हैं, असिस्टेड ई कॉमर्स भी कर रहे हैं. सो वीज़ा प्रोसेसिंग के अंदर आउटसोर्स वीज़ा प्रोसेसिंग, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. सो आप जब यहाँ पे जाते हैं कोई पे भी यूरोप में घूमने या फिर कहीं, तो अपने आप काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स देते हैं जिसको एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी करते हैं उनका. अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बायोमेट्रिक्स कराते हैं आपसे, जो कि आपकी जब आप फ्लाई करते हैं कभी भी दूसरी कंट्री में, तो जो आपके बायोमेट्रिक्स लेके सेव करते हैं वो वर्ल्ड वाइड फिर वही बायोमेट्रिक्स का यूज़ होता है जो आपने फर्स्ट डे किया होता है. ई वीज़ाज देते हैं, अदर अलाइड सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं ये लोग. फोटोकॉपी कोरियर इंटरनेशनल फैसिलिटीज़. फोटोकॉपी कोरियर इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ बेसिकली उस टाइप का काम है जैसे कि आप मानिए आपको अपनी यहाँ से डिग्री इवेल्युएट कराने भेजना है फॉर यूरोप और फॉर यूके फॉर कनाडा, तो आप एक वेस कराते हैं या फिर वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज के थ्रू उसको इवेल्युएट कराते हैं, तो कौन भेजेगा? एक काफ़ी रिस्पॉन्सिबल एंड ट्रस्टेड कंपनी के थ्रू ही कंपनीज भेजती हैं, लाइक BLS. तो आपके यहाँ से डॉक्यूमेंट्स जाएंगे WES में, वहाँ से वेरीफाई होगा, WES विल सेंड बैक टू BLS विच विल गो बैक टू कैनेडियन गवर्नमेंट. तो ये जितना भी आप देख रहे हैं ऑन एंड ऑफ जितना भी जा रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन एंड apart from that they also do consular services like passport renewal, authentication of travel documents, legalization of documents and notary services, ये सब करते हैं. तो इंडिया में डिजिटल सर्विसेज में पंजाब प्रोजेक्ट देखिए आप, डिलीवर्ड फ्रंट एंड सर्विसेज टू इंडियन सिटीजन एट ग्रास रूट लेवल, catered 1.84 crore population and covered 16 districts across the state. So पंजाब में तो सबको कनाडा का रहता है, तो वहाँ पे तो बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन आते होंगे. उत्तर प्रदेश में इन्होंने एक प्रोजेक्ट रोल आउट किया है इन विच दे आर हेल्पिंग ऑन बिहाफ ऑफ यूपी गवर्नमेंट. They have set up 20,000 customer services center. Wow, 20,000 customer service center open through partners.
एंड राजस्थान में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया ई मित्रा कियोस्क इन राजस्थान इन 5 डिस्ट्रिक्ट, लॉन्च पोर्टल फॉर ई मित्रा कियोस्क ऑपरेशन ऑफरिंग D2C एंड P2C सर्विसेज। कर्नाटका में भी है 4,300 प्लस सेंटर्स कवरिंग 15 डिस्ट्रिक्ट अंडर ग्रामा वन प्रोजेक्ट। वेस्ट बंगाल में 80 सेंटर्स कवरिंग 5 डिस्ट्रिक्ट्स। वाह, ग्लोबली भी है। एंड Q1 2024 में जो रेवेन्यू था 304, जितना भी दिखा रहा है ये सब सीआर में, 304 सीआर का था। Q2 में 322 करोड़ का था। Q3 में 364 करोड़ का था। सो एवरी ईयर, हर क्वार्टर में ही इंक्रीज हो रहा है। आप देखिए, हर क्वार्टर में इंक्रीमेंट हो रहा है। एंड ईयर ऑन ईयर में देखा जाएगा तो ईयर ऑन ईयर तो बढ़िया ग्रोथ हुआ है। 23% से लेके 29% का EBITDA मार्जिन आया है, विच इज़ अमेजिंग। और एप्लीकेशन नंबर भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हुए हैं, सो उसी की वजह से ग्रोथ भी हुई है। 7.2 लाख थे जो बढ़ बढ़ के 8.5 लाख हो गए इस क्वार्टर में। नेट रेवेन्यू पर एप्लीकेशन देखिए आप, 2024 की स्टार्टिंग में हर एप्लीकेशन पे 1800 थे, दूसरे क्वार्टर में 1900 हुए, थर्ड क्वार्टर में 2250, फोर्थ क्वार्टर में 2500 एंड अभी 2650 के आसपास पहुंच चुका है। सो हर एप्लीकेशन की कॉस्ट भी बढ़ रही है, विच इज़ ग्रेट फॉर द कंपनी। द ओनली एक्सपेंस अभी जो कंपनी का है वो ये है कि स्टाफिंग, दे हैव 60,000 एम्प्लॉयज विच दे पे ऑफ, so which is one of the major portion of expenses which they goes in. So let's check at their financial books as well. So the company's market cap जो है भी वो 14,950 के आसपास करोड़ की कंपनी है। पी जो है 41.7 का है। आरओसी देखिए आप, धुआंधार आरओसी हो रहा है 31 का। आप लोग कहेंगे कि कंपनी कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ, 31 का आरओसी। मतलब आप 100 रुपये लगा रहे हैं, द कंपनी इज मेकिंग 131 आउट ऑफ इट एवरी ईयर। तो गजब की कंपनी है। 31 का आरओसी है, इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में तो जरूर डाल के रखिएगा। बाय एंड सेल तो आपको डिसीजन है। लेट्स चेक एट देयर फाइनेंशियल एज वेल नाउ, विल गो डाउन। ओके, सेल्स देखिए आप, पंपर इंक्रीज सेल्स में 2021 में 180 करोड़ के आसपास, जो बढ़ के आ चुका है अभी इस क्वार्टर में जून के ऑलमोस्ट 500 करोड़। 2.5 टाइम का इंक्रीज है ये पूरा। एक्सपेंसेस में भी उतना ही है क्योंकि स्टाफिंग भी इन्होंने काफ़ी बढ़ाई है। और उसके साथ आपको मैंने अभी बताया एक्विजिशन भी किए इन्होंने, कई सारे एक्विजिशन भी करते रहते हैं, तो इनके एक्सपेंसेस भी काफ़ी डबल हो गए हैं। मेन जो पोर्शन इनका एक्सपेंसेस का आता है वो एक ही से आता है, जो कि है एम्प्लॉय कॉस्ट। ये देखिए आप, अभी एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ बढ़ के 15% के पास आ चुकी है। सो मेजर एक्सपेंस जो है इनका एम्प्लॉय का ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कर रही है कंपनी 19 करोड़ का कर रही थी 2021 में, मात्र 19 करोड़ का क्वार्टर में। क्वार्टरली बता रहा हूँ मैं, ईयरली भी नहीं है। और अभी इस क्वार्टर में जून में 133 करोड़। आप खुद देखिए क्या गजब चेंज आया है कंपनी में। एंड अभी आपको मैं इसके स्टेक होल्डर्स दिखाऊंगा, देन यू विल बी सीइंग दैट why all these mutual funds and FIIs are buying, because all these reasons company is increasingly growing और कोई इसमें चांस नहीं है that it will go down. Operating profit margins were 11% which has increased to 27%. Profit after tax, which is net profit, was 20 crores which has increased to 120 crores, which is more than 6 times, guys, 6 times. In 4 years, 3 years, the company has increased to 6 times profit. So पी तो बढ़ेगा ही। पी इज नॉट दैट क्रेजी पी राइट नाउ। अभी करंट पी इसका चल रहा है 41 का। एंड लेट्स चेक एट द पी चार्ट। ये पी चार्ट है, यहाँ से पी क्लिक करा एंड लेट्स चेक कि पी क्या था 2021 में। 2021 में जो वो 11 करोड़ का कर रही थी, देन द पी वॉज 32, जो अभी बढ़ के सिर्फ आया है अराउंड 40 के आसपास है अभी। अभी उसने हाई लगाया है पी ने रिसेंट में 63 का, बट आपको फिर भी 2011 के ही ऑलमोस्ट वैल्यूएशन पे पी का मिल रहा है। जो 2011 में पी था, 2021 में पी था, उसी वैल्यूएशन के आसपास मिल रहा है, विच इज़ अ गुड एरिया। मीडियन पी भी इसका 35 का ही है, 40 पे आया है। इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव एज वेल राइट नाउ। Basan Maheshwari's new portfolio, Horizon Hunters, may be added here. So, a lot of people have put in interest in this stock as well.
let's go down and check their shareholding pattern. ओके, सो मेजॉरिटी होल्डिंग जो है प्रमोटर्स के पास है. प्रमोटर जो है स्ट्रॉन्ग हैंड्स, उनके पास मेजॉरिटी होल्डिंग है 71% की, विच इज गुड. उन्होंने कम भी नहीं की है, थोड़ी बहुत की है फ्रॉम 2021, मे बी फॉर एक्विजिंग न्यू कंपनीज और अलग अलग जगह पे ऑफिस खोलने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, देन दे टेक आउट द मनी. एफ आई इज 7.4%, डी आई इज 1.35%. सो पब्लिक के पास क्या है 19% ओनली. एंड लेट्स चेक लाइक इन पब्लिक who are the people who have it. Genram Broking Limited, they had one. DIS में देखिए आप, will show you who all hold these. Okay, now this is the list of mutual funds which are holding this stock and who have added this stock right now in September. आप ये देखिए सितंबर है ना, अगस्त, जुलाई. जुलाई में किसकी नहीं थी, सितंबर में कितने लोग ने फ्रेश ऐड किया है. तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ ये स्टॉक कितने लोगों ने यहाँ पे फ्रेशली ऐड किया है. जेएम स्मॉल कैप फंड ने 2 लाख शेयर खरीदे हैं. मोतीवाल ओसवाल क्वांट फंड ने 31,000 शेयर खरीदे हैं. नावी ने 30,000 शेयर खरीदे हैं इन मंथ ऑफ सितंबर. हाँ, नावी एग्रेसिव हाइब्रिड फंड ने 29,000 खरीदे हैं. निपॉन इंडिया ने भी 21,000 खरीदे हैं. सच बिग नेम्स आर बाइंग इन सिंगल मंथ 5,000 शेयर्स खरीदे हैं. तो आप ये समझिए कि देयर इज समथिंग. एच डी एफ सी स्मॉल कैप में एस बी आई ने, मेरा ये सेट ने, मोतीलाल ओसवाल ने, एवरीबडी हैव पुट इन द मनी करंटली इन दिस स्टॉक. और आप लिस्ट देखिए, इट डजंट गो डाउन, सबने खरीदे ही है. कुछ ने सेल ऑफ भी किए हैं, लाइक यू कैन सी एच डी एफ सी बी एस सी ई टी एफ ने 11% कम कर दिया, दे हैव सोल्ड आउट एवरीथिंग. सो बट मेजरली ने सबने ऐड किए हैं. सो लॉट ऑफ बिग नेम्स आर कमिंग इन एंड द चार्ट इज ऑल्सो, फ्यूचर बहुत ब्राइट है. एंड इंडिया का मार्केट जो अभी है only 14% का है. And apart from that, probably out of the whole Indian population, not even 5% of the people have traveled abroad, especially to all these exotic places. And everybody wants to. सबका मन है जाने का. And sooner or later, they will be taking services from BLS International. So the market size is massive, and they are so much to capture right now. So you cannot mess on the stock. So if you're planning to go to Europe, guys, put your money in BLS, invest it, and let it grow. And when the time will come, take the money out and then go out. So it's a great way to travel as well. So just a quick suggestion, but do take your financial advisor advice before investing in any stock. So this one was BLS International Services, number 2 stock. And please, if you haven't watched the previous video, I'll put the video on top of this icon with the eye, and you can watch the other video which I posted, which one was for PKT Tires and Arvind Fashion. So take a look, guys, and do like the videos and subscribe. And thank you for watching once again. Thank you.